A very good morning, class 8. So in the last video of cubes, the first lecture, we have discussed regarding the cubes till 1 to 20. Then we have discussed some of the properties of cubes, and then we move on to what is the minimum number or the smallest number required to get multiplied or divided with the numbers to make it a perfect cube. So those three topics we have discussed in the last video. In today's video, I'm going to discuss a few of the patterns and some of the important problem sums related to cubes. So before that, let's understand this pattern first of all. Now, please understand, 1 cube is 1, we all know that. 1 cube plus 2 cube is equals to 1 plus 2 cube is 8. So this is 9. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. This can be written as 1 plus 8 plus 27. This is 36. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube. This can be written as 1 plus 8 plus 27 plus 64. क्योंकि 4 का cube 64 है. So this is 100. Now what is the thing what I want to derive from this? Please understand. जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर होता है. जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है. 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 100 है 10 का स्क्वायर. नाउ अब इसमें भी क्या है, the thing to understand is this 1 square can be written as 1 का whole square, 3 can be written as 1 plus 2 का whole square, 6 can be written as 1 plus 2 plus 3 का whole square, 10 can be written as 1 plus 2 plus 3 plus 4 का whole square. तो समझने वाली चीज क्या है, अगर कंसेक्यूटिव, याद रखना है, अगर कंसेक्यूटिव क्यूब्स ऐड हो रहे हैं 1 2 3 4, तो ऐसे ही अगर आ जाए 1 2 3 4 5 एंड लेट्स सपोज आपको ये सब क्यूब्स नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सारे का स्क्वायर, और ये बन गया 15, और 15 का स्क्वायर हमें आता ही है, दैट इज 225. सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू deduce a very important result. The result is that if the sum of cubes of n natural numbers is there, it is equal to the sum of the square of sum of n natural numbers. तो फिर से लिख भी दे रहा हूं, sum of cubes of n natural numbers is equal to cube of sum of square of sum of n natural numbers. कि अगर ये जो n है, n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी 20, n कैन बी 2000. अगर यही क्वेश्चन आ जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल निकालो जी 1000 क्यूब, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सबको अलग अलग सॉल्व नहीं करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 1000 सारे का स्क्वायर. Is that clear? So this is the pattern which is very very important to understand. Okay, so याद कैसे रखना, sum of cubes of n natural numbers. n natural numbers का क्यूब अगर ऐड कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा स्क्वायर ऑफ sum of n natural numbers. Is that clear? Now let me deduce one very important another result. So आप इसे प्रॉपर्टीज में भी ऐड कर सकते हैं. Okay, so another very important result, let me bring it to you. हमने क्यूब्स किए उस दिन till 20, so from that I am going to deduce this result. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 is 64, 5 is 125, 6 was 216, 7 343,
8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. ओके चलो और भी आगे भी कर रहे हैं, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी. 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 क्यूब इज 3375. ये आपको भी ऐसे ही याद करना है सबको. 4096, 17 क्यूब इज 4913, 18 क्यूब इज 5832, 19 क्यूब इज 6859 and 20th cube is 8000. Now what I'm trying to tell you in this, please look at the only digit at one's place. Digit at one's place. अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 है, यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1. तो ऐसे देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर है. 4 है तो पीछे 4, 4 है तो पीछे 4, 5 है तो पीछे 5 है. सो 6 है पीछे 6 है. इज दैट क्लियर? नाउ 9 है तो पीछे 9 है, 9 है तो पीछे 9 है. तो यहां से हम क्या रिजल्ट, क्या प्रॉपर्टी निकालने जा रहे हैं? द नंबर्स एंडिंग विद 1, 4, 5, 6 एंड 9 और इवन आप 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 के लिए मैं वैसे बताने वाला हूं कि नंबर एंडिंग विद 0 विल ऑलवेज बी ए 0. ओके, नंबर्स एंडिंग विद 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0 will end with 1, 4, 5, 6, 9 and 0 respectively. The numbers ending with this their cubes, यहां पे नोट करो, their cubes, उनके क्यूब्स भी will end with 1, 4, 6, 9 and 0. तो कई बार क्या होता है कि MCQ क्वेश्चन आता है, देख के ही बताना था. ओके, अगर ये 2, 1, 6 है तो ये किसका क्यूब हो सकता है? इज दैट क्लियर? तो हमारा दिमाग वैसे चलना चाहिए. इज दैट क्लियर? नाउ अनदर पॉइंट, अब ध्यान देखना जो अगली चीज बता रहा हूं. 2 का क्यूब एंड विद 8, सिमिलरली 12 का क्यूब भी एंड विद 8, मतलब पीछे 2 है तो 8 आ रहा है. बट 8 के टाइम पे क्या आ रहा है? देखिए 8 के टाइम पे 2 आ रहा है, 8 के टाइम पे 2 आ रहा है. तो ये छोटे छोटे चीजें हमें ध्यान देनी है. ऐसे ही 3 के टाइम पे 7 आ रहा है और 7 के टाइम पे 3 आ रहा है. 3 के टाइम पे 7 आ रहा है और 7 के टाइम पे 3 आ रहा है. तो इंटरचेंज कर रहे. सो नंबर्स एंडिंग विद 2 and 8, 3 and 7 will have their cubes ending with 8 and 2, 7 and 3 respectively. तो 2 का एंड 8 करेगा, 8 का एंड 2 करेगा, 3 का एंड 7 करेगा और 7 का एंड 3 करेगा. Is this clear? So from these two results are very important in cracking the multiple choice questions of the competitive exams. So please go through these two results very carefully. उसके अलावा भी हमने properties पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं. Those are quite common, quite easy properties, and we have discussed few questions related to that also. Okay, students. Let's start with some of the problem sums related to cubes. It says, prove that if a number is doubled, then cube is 8 times the cube of the given number. ध्यान से समझना कि अगर let's suppose this is a cube, अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर देता हूं, इसका नंबर मतलब अगर एक 3 इसकी लेंथ है तो 3 को 6 कर देता हूं और हर तरफ 6 बढ़ती है क्योंकि क्यूब हैज ऑल साइड सेम, देन वो कहते हैं कि प्रूव दैट इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. सो देयर आर 2 ways टू डू सच क्वेश्चन. आप 2 तरीके से करोगे, कर सकते हो.
फर्स्ट वे इज वी एज्यूम दैट द साइड ऑफ अ क्यूब इज x मीटर्स. ओके, तो x की फॉर्म में करें. और दूसरा वे है वी एज्यूम दैट द साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 मीटर. ओके, तो विच एवर वे, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं, तो विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन डू दैट. प्रूव दैट. अच्छा, यहां पे नंबर की बात हो रही है. सो एक नंबर की बात हो रही है, तो नंबर को मैं कुछ भी ले सकता हूं. ठीक है. सो आई विल बी डूइंग फर्स्ट मेथड 1. ठीक है, विच इज प्रेफर्ड मेथड. दिस इज प्रेफर्ड मेथड. ठीक है. इट सेज प्रूव दैट अ नंबर इज डबल्ड. तो मैं कहता हूं लेट द नंबर इज x. ठीक है. वो कहते हैं इफ अ नंबर इज डबल्ड देन इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. तो पहले तो गिवन नंबर का क्यूब निकालें. सो क्यूब ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, मुझे क्या पता क्यूब हमेशा क्या होता है, इसका क्यूब x क्यूब. तो मैं क्या लिख सकता हूं x, और यू कैन राइट इन दिस मैनर x इंटू एक्स इंटू एक्स. 3 बार मल्टीप्लाई हो गया क्यूब, तो x क्यूब आ गया. ओके, then its cube, and if they are saying if a number is doubled according to situation or according to question, if a number is doubled, so it will become 2x. So cube of new number, तो जो न्यू नंबर बना है, तो मुझे पता है ये क्या बनेगा 2x इंटू 2x इंटू 2x. तो प्लीज अंडरस्टैंड 2 इंटू 2 इंटू 2. बेटा जो ऑफिशियंट्स है, जो वैल्यू है, वो अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बना 8. x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या बना x क्यूब. तो आप नोटिस करो, ये जो क्यूब था x क्यूब था, अब क्यूब आया 8x क्यूब आया, तो ये उसका कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है. क्लियरली क्यूब ऑफ न्यू नंबर is equals to the 8 times cube of the original number. Original number ये था x. Is that clear? क्वेश्चन क्लियर है. इसको एक तो यहां पे ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड. क्यूब ऑफ न्यू नंबर डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ ओल्ड नंबर. तो दो तरीके हैं. एक तरीका ये है इसको प्रेजेंट करने का, और एक तरीका ये है ओल्ड नंबर. तो जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाएंगे 9th एंड 10th में, तो यू ऑल विल गोना अप्लाई द सेकंड मेथड. सो आप देख लेना आपके स्कूल में कौन सा मेथड कराया, बोथ आर ओके. ओके, 8x क्यूब ओवर x क्यूब. तो x क्यूब डिवाइड हो गए, कट गए, तो आंसर आया 8. तो क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज, और इनकी रेशियो आ रही है 8/1, सो देयरफॉर इट इज 8 टाइम्स. तो बोथ आर करेक्ट. तो ये था बेटा मेथड 1. मेथड 2 में मैंने क्या किया, कई बच्चों को x वाली टर्म्स में मुश्किल आती है, तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर इज 1. तो क्यूब ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 1. ओके, इफ अ नंबर इज डबल, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा. सो क्यूब ऑफ अ न्यू नंबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 बन गया 8. सो क्लियरली अगर ये 8 और ये 1 है, तो ये उसका 8 टाइम्स है. तो क्लियरली क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर. तो आप क्या लिख सकते हो, ये और दूसरे वे में 8/1 यहीं पे आ गया. सो इट इज ऑन टू अस व्हाट वी वांट टू डू. आप ये भी कर सकते हो, लेट द न्यू नंबर इज 10, तो न्यू नंबर 20 बन जाएगा. तो इट इज ऑन टू अस. तो बट द बेस्ट वे, द प्रेफर्ड वे इज ऑलवेज इफ यू गो विद द मेथड ऑफ saying that this is x, okay, or a or b, whatever you want. चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है. यहां इन दोनों क्वेश्चन के बाद मैं एक रिजल्ट डेराइव करूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. प्रूव दैट इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 देन इट्स क्यूब इज 1000 टाइम्स. तो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट द नंबर इज x. सो क्यूब ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, हाँ जी x क्यूब हो जाएगा. न्यू नंबर क्या है मेरे पास, उसने क्या कहा, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स, तो 10 इंटू एक्स हो गया. सो क्यूब ऑफ न्यू नंबर
क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 10x सारे का क्यूब। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 10x इंटू 10x इंटू 10x, और ये क्या आया 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 इंटू एक्स क्यूब। तो इसका क्यूब था x क्यूब, इसका क्यूब है 1000 x क्यूब, तो क्लियरली इट इज 1000 टाइम्स। तो आप क्या लिख सकते हो, क्यूब ऑफ न्यू नंबर इज 1000 टाइम्स, इसको ऐसे लिख लो 1 and 2, ताकि और जस्टिफाई कर दो, फ्रॉम 1 and 2 1000 टाइम्स क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब मैं यहां से चीज समझाने क्या चाहता हूं, ध्यान से समझना। अगर लिखा है प्रूव दैट अ नंबर इज डबल्ड, तो मतलब जो नंबर x का बना 2x, तो जब क्यूब करोगे तो कितने टाइम्स होगा, हमेशा इस 2 का क्यूब का। ये शॉर्टकट मेथड, 2 का क्यूब 8। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज 10 टाइम्स, तो x जो बना 10x बना, तो क्यूब कितने टाइम्स बनेगा, 10 का क्यूब विच इज 1000 टाइम्स। अगर यही मैं आपको कहूं इफ अ नंबर इज डबल्ड, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, तो 5 का 5x बना, तो क्यूब में क्या अंतर आएगा, 5 का क्यूब आएगा 125 टाइम्स। तो ये याद रख लो, ये बहुत काम आने वाला शॉर्टकट क्वेश्चंस में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इफ अ क्यूब नंबर इज मल्टीप्लाइड 1000 टाइम्स, तो 1000 का क्यूब उसका वॉल्यूम पे असर आएगा। ये वॉल्यूम पे भी लेके आता हूं इसी क्वेश्चन को। अगर एक क्वेश्चन ऐसा ही जनरेट हो जाए, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 मीटर। अब मैं आपके सामने ये क्यूब रख रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, ये वॉल्यूम, इसकी साइड का मतलब क्या, हमें पता है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। इसको एज भी बोलते हैं, कई जगह इसी चीज को बोलेंगे एज। एज होता है किनारा, तो एज ही उसकी साइड है, किनारा। तो कहते हैं अगर इसकी साइड 5 है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। और प्लीज नोट दैट द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑलवेज साइड का क्यूब। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, सो मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिख दूंगा, इस केस में साइड 5 है, तो 5 मीटर का होल क्यूब। मैंने जानबूझ के मीटर इनसाइड लिखा, आपको एक चीज सिखानी है आज। तो 5 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 125। मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये होते हैं वॉल्यूम के यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब अगर मीटर है तो, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये बच्चा नहीं लिखता, तो लेट्स सपोज दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर जाएगा, 1 नंबर पूरा कटेगा, तो ये लिखना जरूरी है। तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, बट जब अपने वॉल्यूम लिखा वर्ड, तो उसके यूनिट्स आने मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? Another very important question, this is also important. It says find the volume of cube whose area या surface area, तो ये दोनों सेम होते हैं, एक ही मतलब होता है, is 150 मीटर स्क्वायर। तो प्लीज अंडरस्टैंड सरफेस एरिया क्या होता है। मैं आपको फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, बट उससे पहले आपको ये बता दूं, बिकॉज दिस टॉपिक्स यूजुअली कम इन क्लास 9 और 8 में आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना, बट फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है इसकी सारी साइड्स का एरिया। एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, प्लीज नोटिस 1 2 3 4 5 6। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर आप इसको देखो ऊपर वाले हिस्से को, तो ये एक स्क्वायर लग रहा है, बिल्कुल क्लियर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो अगर ये साइड इंटू साइड स्क्वायर है, तो ये एरिया है। तो ये सारे एरिया कितने हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो जब भी याद रखो कि अगर सरफेस एरिया या एरिया वर्ड क्यूब का आ जाए, तो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख दूं। मैंने आपको फॉर्मूला समझा भी दिया है। एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमेशा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइड स्क्वायर है, एक
जो फ्रंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका एरिया, तो ऐसी 6 स्क्रीन है, ऐसे 6 फेसेस हैं, इसे बोलते हैं फेस ऑफ क्यूब, फेस ऑफ क्यूब। तो ऐसे 6 फेस हैं, तो उस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो मेरे को पता ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। तो पंगा क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए साइड चाहिए, और साइड कहां से निकलेगी, साइड निकलेगी इस फॉर्मूला से। तो गिवन है हमारे को एरिया और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया तो मीटर स्क्वायर, यूनिट्स कभी नहीं छोड़नी। और फॉर्मूला किसके बराबर होता है, दिस फॉर्मूला इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 150 आ गया, तो साइड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 150 डिवाइडेड बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह के डिवाइड हो गया। हाँ 3 2s 3 50s 2 1s 2 25। अब साइड स्क्वायर किसके बराबर आया, 25 के, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और आपको पता है कि रूट 25 होता है 5। तो साइड ऑफ क्यूब क्या आई, 5। देखो मैंने यूनिट्स नहीं छोड़े, अगर साइड है क्यूब की तो उसके यूनिट्स मीटर है, स्क्वायर है एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। फॉर्मूले लिखने कभी नहीं भूलने आपने, तो 5 का क्यूब विच इज 125, फिर से यूनिट्स नहीं भूलने, मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? Got this point, so this is my answer. Now come to one of the most important question and taken from the NCERT book and बहुत बच्चों को तंग करके जाता है, but ध्यान से समझना। It says Parikshit makes a cuboid of plasticine. Plasticine is plastic. 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. अब ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। This is the perfect example to understand this. वो कह रहे हैं एक प्लास्टिसाइन बनाया है जिसकी साइड्स हैं 5, 2 और 5। तो ये 2 साइड्स हैं, इज दैट क्लियर? तो ऐसे कितने क्यूब्स मैं जोड़ दूं, या ऊपर भी जोड़ सकता हूं, साइड पे भी, आगे भी, पीछे भी, कितने क्यूब जोड़ दूं एक क्यूब पर, ठीक है। तो ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इफ यू इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन what should be multiplied to make it a perfect cube, तो वो समझना है। पर उससे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम समझिए। एक चीज याद रख लीजिए, मैथमेटिक्स में और इन रियल लाइफ में हम ना घरों में एक बात करते हैं, कभी आपने पेरेंट्स को भी सुना होगा कि वो ना मैंने ये जो गोल्ड का बैंगल है, कड़ा है, कड़ा पिघलवा के मैंने चेन बनवाई। तो वो क्या प्रोसेस हुआ पता है, जब मैंने कड़े को पिघलाया और चेन बनाई, वॉल्यूम ऑफ दिस बैंगल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द चेन, ठीक है। तो कभी भी मैं कोई चीज जोड़ू, मैं ये सब जोड़ दूं, ठीक है, मैं ये सब जोड़ दूं, तो वॉल्यूम ऑफ सो मेनी क्यूबॉइड्स, मुझे नहीं पता कितने क्यूब है ना, वही क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सो मेनी क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ये होगा। तो ये वॉल्यूम का गेम है, तभी मैंने आज पहले वॉल्यूम का टॉपिक कवर किया। एंड अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड, अगर मैं देखूं इसके अंदर, ये क्यूब के अंदर ये छोटे छोटे भी क्यूब्स हैं, छोटे छोटे, तो एक क्यूब और ऐसे लगे हुए हैं टोटल 27 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ दिस 1 लार्ज क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो एक और चीज आपके वे में अगर मैं समझा दूं कि एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट आप कभी देखो वो ऐसी होती है, ऐसे उसके पीसीज बनाए होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 जो पीसीज हैं, एक पीस का वॉल्यूम को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी चॉकलेट का वॉल्यूम बनेगा। तो वही कॉन्सेप्ट मेरा यहां पे यूज होगा, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, और मैं बात कर रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और वही फॉर्मूला यहां चलता है, पता कैसे? क्योंकि यहां पे सारी साइड्स ही बराबर है, तो वो बनता है L इंटू एल इंटू एल। अगर सारी साइड्स बराबर है, साइड इंटू साइड बन जाता है साइड क्यूब। तो बेसिकली सेम फिगर्स होती हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड की साइड सेम नहीं होती और क्यूब की साइड सेम होती है। तो परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन दिस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, हम समझ चुके हैं कि अगर बहुत सारे क्यूबॉइड मिलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, तो विच इज 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बना 50 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इन दी मैं इसके भी दो मेथड कराऊंगा आज। ठीक है, मेथड 1 इधर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब फॉर्म करने में ट्रिपलेट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? टू फॉर्म अ ट्रिपलेट 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यही हमने सीखा था पिछले वीडियो में। 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद किससे? एक 5 कम है तो एक 5 लिख दिया, और कितने 2 कम है? 2 2 कम है, 2 2 कर दिया। 5 इंटू 10 2 10 10 2 20, that 50 must be multiplied with 20 to make it a perfect cube. To make it a perfect cube. ठीक है, तो 50 इंटू 20 क्या बना? 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। ठीक है, 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। सो देयरफॉर 20 such cuboids he will require, तो ऐसे 20 क्यूबॉइड जोड़ दो, इतने क्यूब वाले। he will require, और परीक्षित will require to make it a perfect cube. See guys, this is a method to be applied for class 8th. But अगर when you grow up in class 9th or 10th and further, how you will do this question, please understand. वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो पीछे जीरो का मतलब, आज हमने एक चीज की, अगर पीछे जीरो है तो उसके क्यूब के अंदर भी जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने आज बहुत सारे क्यूब्स लिखे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। हमें पता चला कि 10 का क्यूब ये है जो 1000 लेके जाता है। इज दैट क्लियर? 10 का, तो फर्स्ट मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्यूब इज 1000 एंडिंग विथ 0। तो मैं क्या लिखूंगा? एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is 50, so let n number of cuboids he require, so volume of n cuboids, देखो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 50, और n का क्या हो जाएगा? n मीन्स अगर 2 है तो 50 into 2 100, 3 है तो 50 into 3 150। तो वॉल्यूम ऑफ n cuboids will be 50 into, देखो 3 है तो 50 into 3, 4 है तो 50 into 4, n है तो 50 into n, उसे मैं लिखूंगा 50 n सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियरली the cube formed must have 0 at units place। ठीक है, सो देयरफॉर लीस्ट वॉल्यूम विद 0 at units place is 1000। ठीक है,
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख लो। सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, और या दोनों का वॉल्यूम सेम कर दें तब भी चलेगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन क्यूबॉइड्स, क्योंकि दोनों का जो मैं जोड़ दूंगा, हम ये दीवार देखते हैं, कोई भी दीवार देखते हैं, एक ईंट और बहुत सारी ईंटें जुड़ जाएं तो क्या बनती है दीवार। तो वॉल्यूम ऑफ दैट इज इक्वल, जैसे मैंने ये बताया, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो पूरी चॉकलेट का वॉल्यूम। तो वैसे ही यहां पे हो गया वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, बड़ा क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन क्यूबॉइड्स। तो बड़ा क्यूब है 1000, फिर एन क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम है लिख चुका 50n, तो n आ गया मेरे पास 1000/50, आंसर इज 20। सो n मैंने क्या लिखा था, n इज नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, सो n कम्स आउट टू 20। दिस इज अ वे टू बी डन इन फ्यूचर, बट अभी बिकॉज वी हैव डन रिसेंटली अ कॉन्सेप्ट दैट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्यूब बनाने के लिए 50 में क्या चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करें कि वो क्यूब बने। 2 में 2 5 थे, 1 5 कम था वो लिख दिया, 1 2 था, 2 2 कम थे तो वो लिख दिया, तो आंसर इज 20। So another type of questions, it says evaluate the following. Okay, so let's understand what is this question all about. अच्छा, एक चीज आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, a की पावर अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है a का रूट, ठीक है। तो दे बोथ आर सेम, तो इस चीज को पहले ही समझ लेना। तो एंड वी हैव टू अप्लाई बॉड मास प्रॉपरली, एक भी गलती की सारा क्वेश्चन गया। तो बॉड मास में सबसे पहली चीज होती है ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स हमेशा अंदर से सॉल्व करनी शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज, वी ऑल नो दैट 576, 7 स्क्वायर इज 49, और इसकी पावर 1/2, उसकी पावर 3। इज इट क्लियर? 576 प्लस 49 क्या बना, 625। 625 की पावर कितनी आई, 1/2, उसकी पावर 3। और मैंने अभी बताया इसी नंबर की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो मैं ये लिख देता हूं 625 का रूट और उसकी पावर 3, ठीक है जी। अब 625 का रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर 625 है, 25 का। तो 625 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 25 इंटू 25, उसकी पावर 3, और रूट, क्योंकि पेयर में से रूट में से एक चीज बाहर आती है तो एक बाहर आ गया 25। आप सीधा भी लिख सकते थे, आप डायरेक्टली भी ये स्टेप पे आ सकते थे, 25 की पावर 3 और वो बना 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये होता है 15625। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। 15 का स्क्वायर, अब देखो यहां पे पावर 1/2 पे जब ऑलरेडी रूट दिया हुआ है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, सारे का, सो 225 प्लस 64 होता है 289। और अब मैं वो स्टेप नहीं कर रहा हूं, ये स्टेप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 289 का रूट क्या होता है, हम कर चुके हैं। 289 का रूट होता है 17, और बचा 17 का क्यूब, ये पावर तो 3 चलेगी, और 17 का क्यूब। अब मैं ये स्टेप भी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये यही प्रैक्टिस करनी है। 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। अब समझ रहे हो, Q20 तक आपको कहा है क्यूब स्टेप्स पे रखो। लेट्स डू 1 or 2 more questions of this type. So another 2 questions. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, उसका रूट, उसकी पावर 3। 36 प्लस 64 100, 100 किसका रूट होता है, या किसका स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का रूट आ गया 10, उसका पावर 3, और ये आ गया 1000। इज दैट क्लियर? 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, क्यूब 169 का रूट, 169 किसका रूट होता है, 169 का रूट 13, उसका क्यूब, और 13 का क्यूब आप सबको आता ही है, इट इज 2197। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वी नीड टू मास्टर दीज थिंग्स टू क्वेश्चन। एक चीज और बताऊं, पिछले में मैंने लिखा था एवेल्युएट, अब मैं लिख रहा हूं फाइंड द वैल्यू। इसको एक वर्ड और लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है। ये सब का मतलब सेम ही चलता है। इज दैट क्लियर? Another question, it says write the cubes of 5 natural numbers
5 नेचुरल नंबर का क्यूब लो विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड इट आउट। सो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3, 6, 9, 12, 20, 15, ये सब मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो इनके क्यूब्स निकालने के लिए कह रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट देयर क्यूब्स। सो 3 का क्यूब इज 27, 6 का क्यूब इज 216, 9 का क्यूब हमें पता है 729, 12 का क्यूब भी पता है हमें 1728 एंड 15 क्यूब भी पता है 3374। वो कहते हैं और प्रूफ करो, वेरीफाई करो द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है वो मल्टीपल ऑफ 27 है। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज में मैंने प्रॉपर्टी करवा दी थी कि हर 3 के मल्टीपल के क्यूब के अंदर 27 छिपा होगा, हर 2 के क्यूब के मल्टीपल के अंदर 8 छिपा होगा, हर 4 के क्यूब के मल्टीपल के अंदर 64 छिपा होगा। तो ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर कट बना 27 इंटू 1। ठीक है, ये क्या बना, अब 216 को अगर मैं 27 से डिवाइड करूं, ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो याद कराया था मेथड। 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का क्यूब, और ये क्या होता है, ये होता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ये बनेगा 27 इंटू 8। 8 कहां से आया, 2 का क्यूब। ये बना 27 इंटू 27। ये बना 27 इंटू 4 का क्यूब 64। ये बना 27 इंटू 5 का क्यूब 125। तो अपने आप हर के अंदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। सो देयरफॉर ये सिंबल ना देयरफॉर का होता है, यहां पूरा लिखो देयरफॉर फ्रॉम, इसको ऊपर लिखा होगा ना, फ्रॉम अबव it is clear, it is evident, this is good word, it is evident that cube of natural number, ये सारी लाइन ऐसे लिख देनी है, cube of natural number which is a multiple of 3 is a multiple of 27। is that clear? तो ये आपको शो क्या करना था कि हर बार वो 27 उसके अंदर एक फैक्टर छिपा हुआ है। Okay students, I'll end up my video of the cubes right now, and we'll be sharing homework on your WhatsApp groups. So there will be around 25 plus questions, and kindly do all those questions. And in tomorrow's or in the upcoming Monday's class, I'll be discussing all the problems with you. Thank you so much.